Kinematics, this is our new chapter, and in this case, we will have to deal with the one-dimensional motion. Then we will be dealing with the two-dimensional motion, and then we will be having three-dimensional motion with us also, and we will be having the characteristics of all the different type of motion in detail. But before we begin with the discussion of such detailed topics let us have the brief background or brief introduction of this chapter kinematics, that what are the basics related to this kinematics and what are the basic terms we will be using as such, and how we can use this concept of kinematics for the derivation of the equations of motion and all that. So dear children, let us first of all begin with the term rest and motion. Rest and motion. This is having its own importance because when we talk about rest and motion, we say that an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the surroundings. When this definition or this statement part is as such mentioned, we always take some reference object or the reference point with respect to which our object under observation is changing its position. So let me once again repeat the term rest. So we will say that an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the surroundings. Surroundings, you may talk in terms of some reference point, you can say, or you can simply have the objects present in the surroundings as such also. Best example, किसी भी object का अगर कोई object rest पे है, that you can treat that tree. A tree does not change its position with respect to surroundings, and that's why we say that a tree is at rest. कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर लो, कोई भी एनीवन, अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बदलती है या चेंज नहीं होती है, वी से दैट हमारा वो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट रेस्ट. और ऐसे ही हम मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे अगर उसकी पोजीशन जो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स. So we can say that an object is in motion if it changes its position with respect to the surroundings. आस पास वाले ऑब्जेक्ट्स की कंपैरेटिवली अगर पोजीशन बदल रही है, वी विल से दैट कि हमारा वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, ए रनिंग चाइल्ड. एक बच्चा दौड़ रहा है रोड पे या पार्क में, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट्स लगातार बदल रही है. सो वी विल बी सेइंग दैट कि वो ऑब्जेक्ट हमारा, वो चाइल्ड हमारा जो है दैट इज इन मोशन. अब इट इज अगेन द फैक्ट दैट रेस्ट एंड मोशन जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. साइमल्टेनियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम you can regard an object to be at rest and the same object can also be regarded in motion.
इसका बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है। इमेजिन कर लीजिए आप किसी ट्रेन में या बस में मूव कर रहे हो, और अगर आप अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग या फेलो पैसेंजर्स देखो तो नहीं बदल रही है। अगर आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग पैसेंजर्स या ऑब्जेक्ट्स नहीं बदलती है, यू विल बी कॉल्ड एट रेस्ट बेटे। लेकिन जो आपकी बस के बिल्कुल बाहर लोग प्रेजेंट हैं, विद रिस्पेक्ट टू दोज पीपल यू विल बी बेटे डेफिनेटली इन मोशन। सो ड्यू टू दिस रीजन वी से दैट कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं बेटा। सो वी अगेन कैन से दैट बेटा रेस्ट एंड मोशन आर relative terms beta. I mean to say that an object may be at rest at some point of time and it may also be in motion beta at the same time. So dear children, सबसे अच्छा example, you are sitting in a bus and the bus is moving, you are at rest with respect to the fellow passengers, but you are in motion with respect to the passengers outside the bus बेटे। So in this way हम बेटे रेस्ट और मोशन को एज रिलेटिव टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, लेट मी कम अप विद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा। लेट अस बेटे डियर चिल्ड्रन कंसंट्रेट अपॉन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा। मैं बेटे रिपीट करूं फिर से एक बार, ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, आपने ये 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में काफी बात कर रखी है। सो दिस इज जस्ट द रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स बेटा, सो अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग दैट। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है आइए देखें। डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस कवर्ड लिख देता हूं। डिस्टेंस कवर्ड इज डिफाइंड as the actual length of path covered by an object बेटा। और बच्चों इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस की, किसी भी डायरेक्शन में और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन में आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो। सो इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और डिस्टेंस कवर्ड को आप SI यूनिट्स में बेटा मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बेटे बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा it is the shortest distance between the initial and the final position of an object beta. It is defined as the shortest distance between the initial and final position of an object बेटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, तो इट विल बी डेफिनेटली हैविंग सम पर्टिकुलर डायरेक्शन बेटा। और अगर इसका डायरेक्शन है तो वी कैन से दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। और साथ ही साथ आप इसको भी SI सिस्टम में मीटर्स में मेजर कर सकते हो।
डियर चिल्ड्रन, कई बार आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो एक तो आपका ये स्टेटमेंट का पार्ट आ जाएगा, दूसरा स्केलर वेक्टर वाला आ जाएगा। तीसरी बात आप कह सकते हो कि जो डिस्टेंस कवर्ड है आपका, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी जीरो एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। सो इन दिस वे बेटे आप अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ बेटे बिल्कुल इसी के साथ मिलता जुलता साथ ही इसके कंसेप्ट आ जाता है स्पीड का एंड वेलोसिटी का। बेटा आइए बेसिकली इन पैरामीटर्स के बारे में भी बात कर लें। स्पीड क्या होती है और बेटा वेलोसिटी क्या है, और हम जो स्पीड है इसको कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइए बेटे देखें, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्पीड। बेटा स्पीड जो है it is the distance covered by an object beta divided by the time taken to cover that distance beta. Speed may be defined as the ratio of distance covered to the time taken to cover that distance beta. In simple words beta, it can be said that आपका जो स्पीड है दिस इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय बेटे टाइम टेकन। अगर हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करें, एसआई सिस्टम में आप इसको मीटर्स में बेटे मेजर किया करते हो। स्पीड को आप v से डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर नहीं डालना, स्केलर है। डिस्टेंस कवर्ड s डिवाइडेड बाय t कर सकते हो आप। और बेटा यूनिट्स की अगर बात कर लें, स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में आप मीटर्स पर सेकंड में इसके जो यूनिट्स हैं इनको लिख सकते हो। सो स्पीड हमारा जो है बेटा, ये क्योंकि डिस्टेंस और टाइम टेकन की रेशो है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो इट विल डायरेक्टली मीन दैट कि आपका जो स्पीड है इट विल आल्सो बी ए स्केलर quantity. It is never a vector quantity बेटे because of the lack of direction. Then furthermore हमारे पास एक बड़ा और इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन आ जाता है। स्पीड की हमारे पास बेटे कौन कौन सी टाइप्स हैं, किन टाइप्स में हम अपना ऑब्जेक्ट जो है इसकी स्पीड को स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। पहले आपके पास आ जाता है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकेंडली वी हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरी बात हमारे पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड फोर्थ टाइप है हमारे पास एवरेज स्पीड। आइए बेटे वन बाय वन इनके बारे में जरा बात करके देखें कि ये क्या चीजें हैं। ऑल्दो आपने 9th स्टैंडर्ड में ये सारा कर रखा है तो रेपिटेशन नहीं है, बट फिर भी बेटा चलो 9th में जो किया सो किया। अगेन मैं इसको कंसेप्ट को बेटा एक बार माइन्यूटली आपको करवा देता हूं ताकि आपको कोई भी आगे चलकर बेटे दिक्कत ना आए। सो आइए बेटे वन बाय वन इनके बारे में बात करके देखें। यूनिफॉर्म स्पीड बेटा क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड टर्म का मतलब है बेटे कि जब आपका ऑब्जेक्ट बराबर के टाइम इंटरवल्स में बराबर के डिस्टेंसेस कवर कर लेता है, वी से दैट हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन रिपीट करूंगा बेटा मैं, यूनिफॉर्म स्पीड वी विल से दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू पोजेस यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distances in equal time intervals with it. Let me write, then I will explain. An object is
said to possess uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. इंटरवल्स ऑफ टाइम बेटे. सो आप क्या कह सकते हो बेटे, इस सिचुएशन में आपके पास एक, मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, लेट इट बी सी, लेट इट बी बेटे डी पॉइंट. ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है, इमेजिन कर लीजिए ये 1 किलोमीटर है. बी से सी तक अगेन 1 किलोमीटर, सी से डी तक अगेन 1 किलोमीटर. इमेजिन कर लीजिए कोई कार ट्रेवल कर रही है अलोंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट रोड, और वो ए से लेकर बी तक 1 मिनट का टाइम लगा रही है, बी से सी तक अगेन 1 मिनट का, अगेन 1 मिनट का. तो यू कैन बेटे माइन्यूटली सी दैट की बराबर के डिस्टेंसेस के इंटरवल हैं और टाइम इंटरवल्स भी बिल्कुल बराबर हैं. सो ऐसा मोशन बेटे जिसमें बिल्कुल बराबर के डिस्टेंसेस, बिल्कुल बराबर के टाइम इंटरवल्स में कवर कर लिए जाते हैं, दैट वी कॉल एज अवर यूनिफॉर्म मोशन बेटे. लेकिन अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की रादर, तो आप कहेंगे कि आपका हो सकता है कि डिस्टेंसेस अनइक्वल हो जाएं, टाइम इंटरवल्स बराबर रह जाएं, या आपके डिस्टेंसेस बराबर रह जाएं, टाइम इंटरवल्स अनइक्वल हो जाएं. सो वी कैन से दैट बेटा एन ऑब्जेक्ट इज said to possess non-uniform speed if it covers unequal distances in equal time intervals and vice versa. वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ कि हो सकता है ये 1 मिनट का टाइम लगा हो, यहाँ पे उसको हाफ मिनट का टाइम लग गया, और यहाँ पे मान लीजिए 2 मिनट्स का टाइम लग गया. तो डिस्टेंसेस तो बराबर के थे, लेकिन टाइम जो है अब ये बराबर नहीं रहा. या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टाइम आप बराबर रख लो, डिस्टेंसेस को अनइक्वल कर दो, तो भी आपका जो स्पीड है दैट वी विल से दैट कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपका ऑब्जेक्ट बेटा पोजेस करता है. देन बेटे तीसरी मेरे पास टाइप आ जाती है स्पीड की, दैट इज द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा. लेट अस वर्क इट आउट बेटा. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा, सो वी विल से दैट किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपके ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है, दैट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा. एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा. मान लीजिए आप अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा या कार पे जा रहे हो. जाते जाते रास्ते में कई बार आपको स्पीड अप करना पड़ता है, कई बार आपको स्लो डाउन करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक ऑन द रोड. तो जिस भी इंस्टेंट पर आपकी नजर पड़ जाती है स्पीडोमीटर पे, आपको उस टाइम पे अपनी स्पीड दिख जाती है, पता चल जाती है. सो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जितनी भी आपकी स्पीड है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा. और इस इंस्टेंटेनियस स्पीड के मेजरमेंट के लिए आप अपना जो स्पीडोमीटर है उसको यूज करते हैं बेटा. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बेटा, इट इज डिफाइंड as the speed possessed by
an object at a particular instant of time बेटा. So इसको मेजर करने के लिए बेटा we make use of the speedometer. Speedometer of a vehicle, it measures the instantaneous speed बेटे. लास्ट वाला टाइप हमारा बेटे आ जाता है एवरेज स्पीड का. दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट बेटा. एवरेज स्पीड, इस पे बेस्ड बेटे न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं. एवरेज स्पीड के कंसेप्ट के बेसिस पे बेटा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते करते कई बार उस ऑब्जेक्ट को स्पीड अप होना पड़ता है, कई बार स्लो डाउन करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल द अदर रेलिवेंट बेटा पैरामीटर्स. तो हम क्या करते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए, सारे के सारे जो डिस्टेंसेस के अनइक्वल डिस्टेंसेस हो या आपके जितने भी फिक्स्ड पॉइंट्स हैं बीच में, उनके डिस्टेंसेस आप कर लो, उनको आप टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना आपका कवर्ड है और उसको आप बेटे टोटल टाइम जितना आपका लग गया उससे डिवाइड कर दीजिए. आपके पास आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा. अगर हम इसको साइंटिफिकली डिफाइन करें बेटा, एवरेज स्पीड जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल distance covered by an object to the total time taken बेटा. आइए थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आपको मिल सकती हैं. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस कंसेप्ट in a little bit more detail beta. So we will say that beta average जो speed है this is equal to total distance covered divided by total time taken beta. ये चीज हम बेटे इस तरीके से मैनेज करेंगे. इमेजिन कर लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेट रोड है. इस स्ट्रेट रोड पे आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये बी पॉइंट पे पहुंचा, डिस्टेंस कवर्ड S1 है. ये सी पॉइंट पे पहुंचा, डिस्टेंस कवर्ड S2 है. डी पॉइंट पे पहुंच गया, डिस्टेंस कवर्ड S3 है. ए से लेकर बी तक आपका ऑब्जेक्ट जो है इसकी स्पीड v1 है. b से लेकर c तक v2 है. c से लेकर d तक लेट इट बी v3. आप दो इंटरवल्स भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है तीनों इंटरवल्स आपको डिस्टेंस के लेकर सॉल्व करना है. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट फर्दर. अब देखिए आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बेटे इन सबका एडिशन कर लोगे आप अपना. मैं दो इंटरवल्स के साथ ही कर देता हूं, उससे थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा. For a time, leave the third part beta. Total distance covered, ये बेटे ऑटोमेटिकली आपका S1 यहाँ पे है और S2 आपका आगे वाला इंटरवल है. S1 प्लस S2 के बराबर आ गया. अब टाइम हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको A से लेकर B तक टाइम निकालना पड़ेगा. और आप जानते हैं स्पीड जो है आपके ऑब्जेक्ट की, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, और यू कैन से दैट टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटे. सो ए से लेकर बी तक आपके ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है, दैट विल बी इक्वल टू बेटे योर डिस्टेंस कवर्ड S1 डिवाइडेड बाय द स्पीड v1. दिस इज योर टाइम t1 ए से लेकर बी तक. बी से लेकर सी तक T2 जो होगा इट विल बी S2 अपॉन V2 बेटा. सो आइए अब हम टोटल टाइम की भी बात कर लेते हैं. टोटल टाइम टेकन आपका बन गया जी
T1 प्लस T2 के बराबर, इट इज S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2। अब आप अपना स्टैंडर्ड रिलेशनशिप में वैल्यूज पुट कर दीजिए। V एवरेज, दिस इज S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। बेटा ये आपके पास आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इस सिचुएशन में वी कैन स्टिल हैव ए स्पेशल केस कि अगर आपका S1 S2 के बराबर हो जाए, मान लीजिए इंटरवल्स डिस्टेंसेस के बराबर हैं, अगर आपका, लेट मी राइट ओवर हियर बेटा, लेट S1 इज इक्वल टू S2 और कलेक्टिवली हमने दोनों को S के बराबर कह दिया, इसमें पुट कर दीजिए। सो यू विल से दैट V एवरेज जो है, दिस इज S प्लस एन अदर S डिवाइडेड बाई S अपॉन V1 S अपॉन V2। बेटा ऑब्वियसली V एवरेज जो है आपका, S आपने न्यूमिनेटर से कॉमन ले लिया, इट इज 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर से भी आपने S कॉमन लिया, 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2, S इज गेटिंग कैंसल्ड बेटा, और ये आपके पास V एवरेज बन गया बेटा 2 डिवाइडेड बाई V1 V2 एंड V2 प्लस V1, समथिंग लाइक दिस बेटे। आप इन टर्म्स को थोड़ा रीशफल कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, आपको आपका एवरेज जो वेलोसिटी है, रादर स्पीड है, ये बेटा मिल जाएगा। सो V एवरेज फिर क्या बना बेटा, इस टर्म को आप ऊपर ले जाइए, इट इज 2V1 V2 divided by V1 plus V2. So this is how you can calculate the average speed of the object बेटा। इस कंटेक्स्ट में बेटा स्टिल हमारे पास एक और तरीका है, जब आपको दिए गए पैरामीटर्स अलग हुए, इससे अलग हों, तब क्या करेंगे आप। जैसे कि इमेजिन कर लीजिए ये आपका एक स्ट्रेट रोड है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट A है, ये B है, ये C है, लेट इट बी D। A से लेकर B तक आपका ऑब्जेक्ट जो है V1 स्पीड से T1 टाइम तक मूव किया, B से लेकर C तक V2 स्पीड से T2 टाइम तक मूव किया, C से D तक V3 स्पीड से T3 टाइम तक मूव किया। इसमें देखो आपको डायरेक्टली बेटे डिस्टेंसेस अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं, तो डिस्टेंस आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, तो A से लेकर B तक आपका डिस्टेंस जो होगा V1 इंटू T1 हो जाएगा, B से लेकर C तक V2 इंटू T2 हो जाएगा, C से लेकर D तक V3 इंटू T3 हो जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, V एवरेज जो होगा it will be V1 T1 V2 T2 V3 T3 divided by T1 plus T2 plus T3। ये टोटल टाइम आपको बेटा इस तरीके से मिल जाएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड व्हेन डायरेक्ट डिस्टेंस इज नॉट गिवन टू यू, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको वेलोसिटीज और टाइम जो हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है। इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या चीज है और हम बेटे वेलोसिटी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमारे पास वेलोसिटी जो है इसके कौन कौन से यूनिट्स हैं, टाइप्स हैं, रादर यूनिट्स नहीं टाइप्स कहना चाहिए था मुझे। आइए बेटे जरा ब्रीफली इसको भी देखें कि हमारा जो टर्म है वेलोसिटी, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म बेटा। वेलोसिटी बेटे, वेलोसिटी सबसे पहली बात तो ये है कि ये बेटे आपका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन का रेशो है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशो of displacement to the time
टेकन बेटा। तो आप वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, आप वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर डालोगे, डिस्प्लेसमेंट एस के ऊपर भी डालोगे, टी एस एच आ जाएगा। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए वेक्टर हम डाल रहे हैं, अदरवाइज स्पीड अगर होता तो हमने नहीं डालना था वेक्टर बेटा। एंड सेकेंडली आप इसको मीटर्स पर सेकंड में मेजर करोगे। और बेटे आप जैसे आप जानते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑन द सेम पैटर्न आपका वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड जो है दैट विल स्टे पॉजिटिव बेटे। आप लोगों को स्पीड और डिस्टेंस के वेलोसिटी के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस सारे पता होने चाहिए। पहला पॉइंट आपका स्टेटमेंट पार्ट का आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप कह दोगे स्पीड आपका स्केलर है बट आपका वेलोसिटी वेक्टर है। तीसरे पॉइंट में आपका स्पीड जो है दैट कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, इस केस में इट कैन बी जीरो एज वेल एज विद नेगेटिव। सो इन दिस वे बेटे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। कोई एग्जाम्पल आपको देना हो तो आप वो एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स की बेटा, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स स्पीड की निकाली थी, अगर आप उनके ऊपर वेक्टर साइन डाल दोगे तो वही आपका बेटा वेलोसिटी का कंसेप्ट भी आपको मिल जाएगा। सो इन दिस वे बेटे वेलोसिटी और आपका जो स्पीड है इन दोनों में सिर्फ एक बेटे डायरेक्शन का ही फर्क है। अगर आपका मोशन जो है इट इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तो आपका जो स्पीड है ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वेलोसिटी बन जाएगा। या आप ये कह लो अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिकली और ऑब्वियसली वेलोसिटी ही है। देन बेटे एक दो छोटी सी और बातें हैं। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में बात करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसकी बेटे इनिशियल वेलोसिटी को आप प्रोबेबली यू वेक्टर से, फाइनल वेलोसिटी को वी वेक्टर से आप डिनोट किया करते हैं। देन मेरे पास बात आ जाती है एक्सेलरेशन की बेटा। एक्सेलरेशन जो है आप इसको स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट करते हो एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है एंड टाइम टेकन t है। तो बच्चों एक्सेलरेशन फिर आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। अब वेलोसिटी में कितना चेंज आया है बेटा, देखो फाइनल वेलोसिटी आप v बोल रहे हो, वेक्टर डाल देना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, टाइम टेकन t है बेटा। सो ये आपके पास एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी आ जाया करता है। बच्चों अगर आपका v जो है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो तो आपका एक्सेलरेशन जो है इट विल बी मोर देन जीरो। और अगर आपका जो है फाइनल वेलोसिटी इट इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन आपका जो है नेगेटिव आ जाता है। इसको बोल देते हैं रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन कब होगी, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक सप्लाई कर देते हो, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम पड़ जाती है इन कंपैरिजन टू द इनिशियल वेलोसिटी बेटा। सो इन दिस मैनर बेटा ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हमने आज का जो पीरियड है ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर डिवोट किया है। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये टॉपिक्स आपको आते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारा आपको एक बार अच्छे से रिपीट कर दिया जाए बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। बाकी चीज फिर बेटे हम कल करेंगे, आगे करेंगे। और आई विल लेट यू नो कि फिर हमारा जो आपका जो PT1 एग्जाम है उसका सिलेबस कितना रहेगा। आई विल बी
explaining that in the end beta. So thank you all beta.